welcomes you all in this 28th session of Graduate Scholar Talk series, which is an all new initiative by the Department of History Saksha and IQAC, that is Internal Quality Assurance Cell of Shyamlal College Evening. This talk series was started on 7th Feb 2021, and since then it had been carried out with due perseverance and diligence weekly on every Sunday with a view not only to enhance speaking and presenting skills but also to promote high order thinking skills among the students. Before going into the main event, I would like to tell something. Look, today is Rakhi, and we all knew this before. Thank you for being here. All of the people who are gathered here just to listen our, budding young graduates. It is really, really honor for all of us that you people are keep loving and supporting us, our initiative that much. We are really thankful to all of you who are gathered here. I know you might have other engagements also, but thank you. Thanks a lot for being here. And we literally got one of the best audience. Thank you for all of your love and support. Literally, I mean it. Moving ahead, before just diving main into event, I would like to take the blessings of Goddess of Knowledge, Knowing and Intellect, Ma Saraswati. श्लोक अर्थ। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभ्यमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें। Thank you, Ms. Divya. Now, this is the correct time to call our chief invitee of the day, that is Ms. Kashish, who is a third year student of BA Honours, Shyamlal College Evening, University of Delhi. You might be surprised by hearing the name that student in a form of chief invitee. So, yes, guys, she is exceptionally brilliant student of our Shyamlal College. She possesses a vivid understanding of various topics, and she is the perfect candidate to judge the speaker of the day because she has already been itself to many stages like this. So she is a perfect girl and a perfect candidate to be the chief invitee of the day. And moreover, this program is being organized by the student and this is for the students. So presence of her really matters. Therefore, I would like to call Miss Shakshi to just give some blessings to all our, the listeners as well as to our speaker of the day, Miss Sakshi. Kashish. Kashish, I'm really sorry. Miss Kashish. Thank you, Ajay. Thank you so much. Good evening, everyone. My name is Kashish Singh, and I'm student of Political Science Honors third year from Shamlal College Evening. So it's been a pleasure for me to attend this GSTS talk, that is Graduate Scholar Talk meeting on every Sundays at 5 p.m. because whenever I get time, I make sure that I do attend this talk because and it's I appreciate the effort that has been made by the concerned teachers and the students who have made this talk series so well informed and engrossing for all the students who attend this talk. And also the best part of the GSTS is I like the most is the topic that graduates take. Okay, because the topics are so vibrant and they are so out of the box topics. So because I remember that when I was attending one talk that was the hill the pattern of hill politics in British India.
and I had no idea what the graduates were going to talk about. And when she started to talk and the talk over, like it was really an insightful talk that I thought that I really pondered upon it. And there was one more talk that was medieval alchemy, and I like got very fond of that topic when Ms. Shivani talked about it. So, like these topics, when these topics are presented in front of you, they like really push you up to like get out of your comfort zone and like really ponder upon these topics and like really construct new ideas along that topic because you haven't been to that topic in maybe in your life. Also, I would like to thank Manish sir and his team for creating such a great platform for we the students and where we can come and put forth our scholarly propensity and like we can evolve ourselves into a more sagacious adults. So thank you so much Manish sir for this wonderful GSTS talk that you continue and I believe you'll continue for the entire Sundays. Also, I am looking very forward to Miss Sonam's talk, that is the noises of democracy, which I'm very feverish to attend, and I'm getting forward to listen to her. So, thank you. That's it. Thank you. Thanks a lot, Ms. Kashish. It was like really pleasure for us that you have been a part of this GSTS since starting. So really nice to hear, and our team might be very, very wondering on that. You know that you have been the part of our GSTS. Thank you. So now this is the time to call our speaker of the day, Ms. Sonam, whose topic is the noise of the democracy. She will be talking about her topic and giving you the entire presentation. Will be presenting her research that she has done over the period of time. So I would invite Ms. Sonam to conduct it and to present her topic. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, go ahead. All the rest. Yeah. गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सोनम है। मैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज की एक छात्रा हूँ। आज मैं अपने टॉपिक द नॉइज ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हुंकार पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जहां लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार चुनी जाती है। लोकतंत्र अपने लोगों को अपनी सरकार को चुनने का अधिकार देती है। वह इस तरह लोग अपने लिए चुनी गई सरकार से सवाल पूछने की पूरी आजादी रखते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने अपने टॉपिक को 4 भागों में विभाजित किया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला, क्या लोकतंत्र पर खतरा लोगों के आभास से परे है या लोग लोकतंत्र पर खतरा व उसके खत्म होने के निशान पहले ही जान जाते हैं। दूसरा, लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तीसरा, क्या भारत अभी भी लोकतंत्र की निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहा है या इसने लोकतंत्र में सर्वोच्चता प्राप्त कर ली है। चौथा, लोकतंत्र का अर्थ सरकार और उसके अंगों से है या लोगों व उसकी आकांक्षाओं से। दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र ना होना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ऐसे भी कई सारे देश हैं जहां लोकतंत्र शुरुआत से ही नहीं है, जैसे सऊदी अरेबिया जहां शुरुआत से ही एक मोनार्की है, नॉर्थ कोरिया जहां तानाशाह है, वियतनाम और चाइना जहां शुरुआत से ही एक ही पार्टी रूल करती आई है, और जॉर्डन जहां कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। अब मैं आपको उन 2 प्रकार के देशों के बारे में जानकारी दूंगी जिन्होंने लोकतंत्र से तानाशाह की प्रक्रिया को देखा तो है, लेकिन इन दोनों प्रक्रियाओं में अंतर बहुत बड़ा है। पहले प्रकार के देश जहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई, जैसे चिली। चिली एक ऐसा देश है जहां 1973 में मिलिट्री ने कब्जा कर लिया था और वहां के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति एलेंडे को हटा दिया गया था। 1973 से 1990 तक चिली में मिलिट्री डिक्टेटरशिप मौजूद रही, जिसके कारण चिली को कई प्रकार के आर्थिक और देश सुरक्षा संकट झेलने पड़े। चिली की तरह ही 2019 में सूडान में, 2020 में माली में और 2021 में म्यांमार में मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई, जो कि पहले देश होंगे जहां पर कोरोना पैंडेमिक के दौरान मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई, और इस समय इन दोनों ही देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और यहाँ के निवासियों को कई प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। हाल ही में अफगानिस्तान पर तालिबान के हुए कब्जे ने पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया है।
वो भले ही एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप ना हो, लेकिन वो एक डिक्टेटरशिप का रूप है जो बहुत ही अचानक और तीव्र रूप से हुई है। और तालिबान ने कहा है कि तालिबान ने वहां का लोकतंत्र खत्म कर दिया है और कहा है कि वे अपने कानूनों को लागू करेंगे। दूसरे प्रकार के देश होते हैं जैसे पेरू। पेरू एक देश है जहां अल्बर्टो फुजीमोरी नाम का व्यक्ति 1990 में प्रेसिडेंट बना था और 1992 में उसने लोकतंत्र को स्थगित कर दिया था। अल्बर्टो फुजीमोरी ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो अपने देश का प्रेसिडेंट बनेगा या फिर अपने देश में डिक्टेटरशिप लाएगा। अब वो सिर्फ इतना चाहता था कि वो अपने देश की संसद में एक छोटा सा हिस्सा ले ले। अब उस हिस्से को पाने के लिए उसे किसी पार्टी द्वारा नॉमिनेट होना जरूरी था। अब किसी पार्टी ने उसे नॉमिनेट नहीं किया, तो उसने खुद की ही पार्टी बनाई, खुद को ही नॉमिनेट किया और सेनेट में एक हिस्सा ले लिया। सेनेट में हिस्सा लेने के बाद भी उसे उसकी बातों को किसी ने नहीं सुना और 1990 के समय में पेरू देश में आर्थिक संकट आया हुआ था, जिसका अल्बर्टो फुजीमोरी ने बहुत सही तरीके से फायदा उठाया। अल्बर्टो फुजीमोरी ने अपनी जनता को ये बताया कि अपोजिशन जनता के लिए और देश के आर्थिक संकट को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, और जनता से उसने वादे करने शुरू किए कि अगर वे लोग अल्बर्टो फुजीमोरी को प्रेसिडेंट बनाते हैं तो अल्बर्टो फुजीमोरी ऐसे बदलाव लाएगा, ऐसे कानून पारित करेगा जिससे कि देश के आर्थिक संकट में कमी आएगी, ये खत्म होगा और देश की जनता का भला होगा। अब 1990 में इन सब का फायदा उठा के अल्बर्टो फुजीमोरी प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के एक महीने बाद तक किसी भी जज ने, किसी भी अपोजिशन ने अल्बर्टो फुजीमोरी की बात नहीं सुनी। अब देश में तनाव इस तरीके का पैदा हो चुका था अल्बर्टो फुजीमोरी और अपोजिशन के बीच में कि या तो अल्बर्टो फुजीमोरी ही रहते या फिर अपोजिशन। तो अल्बर्टो फुजीमोरी ने सिचुएशन को आसान किया और उन्होंने अपोजिशन, कानून और लोकतंत्र को खत्म कर दिया। 1992 में उन्होंने टेलीविजन पर आकर यह घोषणा की कि वह देश के लोकतंत्र को कुछ समय के लिए स्थगित कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र में लोकतांत्रिक रूप से चुने जाने के बाद अल्बर्टो फुजीमोरी ने लोकतंत्र को स्थगित किया और तानाशाह ले आए। बिल्कुल इसी प्रकार कई सारे देश हैं जैसे कि जर्मनी के अडोल्फ हिटलर, जापान के हिदेको तोजो, स्पेन के फ्रांसिस्को फ्रांको, वेनेजुएला के हुगो चावेज और फ्रांस के फिलिपे पेटेन ने भी देश की जनता द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुने जाने के बाद खुद को कुछ समय बाद डिक्टेटर के तौर पर दिखाया और देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया। ये तो उदाहरण बहुत साफ है और इनसे हमें मालूम होता है कि कैसे एक देश में लोकतंत्र से तानाशाह की प्रक्रिया इतनी अलग हो सकती है। जहां एक तरफ चिली और म्यांमार जैसे देशों में मिलिट्री डिक्टेटरशिप अचानक से आई, अफगानिस्तान में तालिबान धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन उसका अंदाजा पहले से ही लोगों को था और एक दिन उसने देश पर कब्जा कर लिया। ये बताता है कि कैसे तीव्रता कितनी तेजी से आया और इस तेजी के बारे में लोगों को जानकारी थी। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के अडोल्फ हिटलर और पेरू के अल्बर्टो फुजीमोरी ने लोकतंत्र का ही इस्तेमाल करके कानूनी रूप से, बहुत ही कानूनी प्रकरण से देश में लोकतंत्र को खत्म किया और तानाशाह को लाया, जिसकी खबर ना तो देश के निवासियों को हुई, ना ही खुद लीडर्स को, क्योंकि ना ही जर्मनी के अडोल्फ हिटलर को ये पता था कि वे कभी भी एक तानाशाह बनेंगे और ना ही अल्बर्टो फुजीमोरी को ये पता था कि वे कभी भी तानाशाह बनेंगे। तो यहाँ हमें पता चलता है कि कई बार स्थितियां ऐसी आती हैं जहां पर ना लीडर्स को पता चलता है और ना ही जनता को कि देश में लोकतंत्र धीरे धीरे कम हो रहा है और एक समय पर आकर खत्म हो जाएगा। अपनी किताब हाउ डेमोक्रेसी डाई में स्टीवन लेवित्स्की और डैनियल ज़िबलैट ने कहा था, स्वायत्तवाद के चुनावी मार्ग का सबसे दुखद विरोधाभास यह है कि लोकतंत्र की हत्या के लिए लोकतंत्र के ही संस्थान धीरे धीरे और सूक्ष्मता से उपयोग में लाए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कोई सरकार अपने देश के लोकतंत्र को प्रभावित व कमजोर करने के लिए जिम्मेदार होती है और इस प्रकार लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो चलिए जानते हैं लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से कौन से होते हैं।
मुख्य रूप से ये कारक 3 होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार होंगे। पहला, देश की सरकार द्वारा देश में कानून बनाने वाली संस्थाओं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, टैक्स अथॉरिटीज, जुडिशरी और रेगुलेटरी एजेंसीज को सिर्फ अपने हित में इस्तेमाल करना व उन्हें अपनी ओर कर लेना। इससे फायदा सरकार को ये होता है कि वे अपने जुर्मी सहयोगियों को बचा पाते हैं। दूसरा, अपोजिशन के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही कर पाते हैं। और तीसरा, अपने कानूनों को जल्द से जल्द पास करवा पाते हैं, चाहे वो जनता के हित में हो चाहे अहित में। पुलिस को अपने अंडर लेके सरकार का मोटिव होता है पुलिस को अपने अंडर लेने का सरकार का मोटिव होता है कि वे अपने सहयोगियों को किसी भी कानूनी कार्यवाही या किसी भी केस से बचा सके आसानी से, और अपोजिशन पर जल्द से जल्द ज्यादा कार्यवाही करी जा सके और उनके प्रोटेस्ट को खत्म किया जा सके। दूसरा, वो टैक्स अथॉरिटीज का इस्तेमाल करके अपोनेंट्स को कमजोर किया जाता है, जैसे कि उनके घरों में टैक्स रेट जलवा देना, बिजनेस आउटलेट्स और मीडिया हाउसेस में टैक्स रेट जलवा देना, जिससे कि वो सरकार के खिलाफ बोलने से डर जाए और सरकार के खिलाफ बोलने से रुक जाए। इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस्तेमाल अपोजिशन के ऊपर स्पाइंग करने के लिए, निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि अपोजिशन पर निगरानी रखने के बाद उनसे जो डेटा आया है उससे उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके और उन्हें अपने फेवर में लिया जा सके या फिर कमजोर किया जा सके। दूसरा तरीका होता है अपोनेंट्स को कमजोर करना। मैंने अपने पहले पॉइंट में बताया कि किस तरीके से सरकार जुडिशियल अथॉरिटीज और देश की अन्य अथॉरिटीज का इस्तेमाल अपोजिशन को कमजोर करने के लिए मुख्य रूप से करती है। दूसरे पॉइंट में यही है कि अपोजिशन को कमजोर करना, चाहे अपने पर्सनल तरीके से उन्हें अपने फेवर में ले लेना, या फिर अगर वो ना माने तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करना, चाहे वो झूठी हो चाहे सच्ची। तीसरे पॉइंट में रूल्स में बदलाव लाना। कई बार सरकारों में ऐसा होता है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही लीगल तौर से, बहुत ही कानूनी तौर से ऐसे बदलाव लाए जाते हैं जो जनता के सामने इस प्रकार पेश किए जाते हैं कि वो जनता के हित में है और जनता के लिए ही बने हैं और जनता को बहुत ज्यादा फायदे दिलाएंगे, जबकि जनता को ये बात पता ही नहीं होती है कि वो जनता के लिए किसी भी प्रकार से फायदेमंद नहीं होंगे। वो हर प्रकार से सरकार के लिए और उस पार्टी के लिए फायदेमंद होंगे जो उस वक्त सरकार में है। दूसरा, इलेक्टोरल सिस्टम में बदलाव लाकर। कई बार इलेक्टोरल सिस्टम में ऐसे छोटे छोटे बदलाव आते हैं जिसके बारे में जनता को कोई जानकारी नहीं होती है, और होती भी है तो जनता उस पर सवाल करना सही नहीं समझती, क्योंकि वो बदलाव इस प्रकार से लाए गए हैं, इस कानूनी प्रक्रिया से लाए गए हैं जिस पर संदेह करना और सवाल उठाना जनता के लिए मूर्खता रहती है, और इसलिए जनता उस पर सवाल करना सही नहीं समझती है। अपने तीसरे ऑब्जेक्टिव, क्या भारत अभी भी लोकतंत्र की निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहा है या इसने लोकतंत्र में सर्वोच्चता प्राप्त कर ली है, इस पर मैं अपने कुछ डेटा, कुछ ग्राफ्स दिखाना चाहूंगी, जिसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए 15 सेकेंड लूंगी। क्या स्क्रीन Yes, go ahead. Yes, it is visible. Yes. Is it going? Okay. इस ऑब्जेक्टिव पर आगे बढ़ते हुए मैं आपको विश्व की 2 संस्थाओं, फ्रीडम ऑफ हाउस और वीडम, वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी के द्वारा दिए गए डेटा को शो करूंगी। ये संस्थाएं हर वर्ष दुनिया भर के देशों के फ्रीडम इंडेक्स और लोकतंत्र के इंडेक्स को सामने लाती है। फ्रीडम ऑफ हाउस ने जहां हमारे देश को शुरुआत से लेकर 2020 तक फ्री कंट्रीज की लिस्ट में रखा, वहीं इस वर्ष 2021 में फ्रीडम ऑफ इंडेक्स में हमारा देश अब पार्शियली फ्री कंट्रीज की लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ हाउस की रिपोर्ट है इंडिया को लेकर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि पॉलिटिकल राइट्स आवाज नहीं आ रही है सर। Yes. Let me see.
Sonam? We have dropped the message. Sorry for that, because it's technology. We can't do anything by ourselves. Okay, so she'll try to join. She has just messaged that she is trying to join, and just be patient, just for a few seconds. अरे यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट इशू था, इस वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गई मीटिंग। मैं कंटिन्यू करती हूँ। फ्रीडम ऑफ हाउस ने जहां हमारे देश को शुरुआत में 2020 तक फ्री कंट्रीज की लिस्ट में रखा, वहीं इस वर्ष फ्रीडम ऑफ इंडेक्स में हमारा देश पार्शियली फ्री कंट्रीज की लिस्ट में सम्मिलित हुआ, जो कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र में You are a bit inaudible. Sorry for interrupting you. Sorry for interrupting you, Sonam. You're a bit inaudible. If you could just don't share this screen. If you could send this to anybody like me or anybody in the group, so they will share this. You just speak. You speak. You are very much presentable. जो भी तुम बताना चाह रहे हो वो easily understandable है हमको. So just don't worry. ओके। अरे ऐसी करनी है। Anarya, mute yourself. I'm so sorry. Continue. इसके साथ साथ वीडम ने भी अपनी डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया के इंडेक्स को दिखाते हुए ये बताया कि देश का डेमोक्रेसी इंडेक्स 2010 से लेकर लगातार नीचे गिरता आ रहा है और इसमें जरा सा भी बढ़ाव देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा देश में कई ऐसे बड़े किस्से देखने व सुनने को मिलते हैं जो देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। जैसे हाल ही में दैनिक भास्कर और यूपी के बेस एक टीवी चैनल भारत समाचार पर सरकार द्वारा टैक्स रेट्स डलवाए गए। इस पर विपक्ष और इन दोनों मीडिया हाउसेस के मालिकों का कहना है कि सरकार ने यह सब कुछ बदले की भावना से किया है, क्योंकि दैनिक भास्कर कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जुड़े सवाल लगातार सरकार के विरोध में पूछ रहा है और सरकार इस पर कोई क्लियर डेटा या फिर संक्षिप्त विवरण देने को मनाही कर रही है या फिर राजी नहीं है। दूसरा, क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रावी पर सेडिशन लॉज को लगाकर गिरफ्तार करवा दिया गया था। इसके साथ साथ 2020 कोरोना वायरस पर रिपोर्टिंग कर रहे कई सारे जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया व प्रोटेस्ट को रिपोर्ट करने से कई सारे जर्नलिस्ट को रोका गया और कई सारे जर्नलिस्ट जिन्होंने रिपोर्टिंग की उन्हें जेल में डाला गया। हालांकि अब हमें क्या जानना रिपोर्ट Sonam, if it is possible to you, रिपोर्ट ने भारत can का you please just switch off your camera? Yes. Sonam, you are inaudible. I can't hear you. I'm sorry. Can you again try? Subham, I think this is the time to go ahead. लाया गया था जो सरकार के समर्थन में फैसले लिया करते थे। तो ये था पहला तरीका कि उन बड़ी बड़ी एजेंसीज और उन रेगुलेटरी ऑफिशियल्स को अपने अंडर ले लेना जो देश से जुड़े बड़े फैसले लेते हैं। दूसरा होता है अपोनेंट्स को कमजोर करना। अपोनेंट्स को कमजोर करना सब विपक्ष किसी भी सरकार में किसी भी लोकतंत्र में सबसे आसान तरीका होता है और इसे बहुत लोकतांत्रिक माना भी जाता है, क्योंकि अपोनेंट्स को कमजोर करके एक जो पार्टी या गवर्नमेंट मजबूत हो सकती है। इसका तरीका होता है खरीद लेना। सबसे पहले खरीद लेना इन द सेंस कि
पैसे देकर मीडिया को खरीद लेना, मीडिया को फोर्स करना कि वो सरकार के अंडर बोले, अपोनेंट्स के नेता या फिर जो बड़े बड़े लीडर्स जो सरकार के समर्थन में बात कर सकते हैं और उन्हें लगता है कि उनके लिए बहुत मददगार होंगे, उन्हें पैसे देकर खरीद लेना। अगर वो खरीद लिए जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं खरीद पाते हैं तो उनको वो टैक्स अथॉरिटीज या पुलिस और जुडिशियल सिस्टम द्वारा किसी न किसी तरीके से कमजोर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया। तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है रशिया में जब पुतिन की सरकार बनी थी तो उसने ये कह दिया था कि उसके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक टेलीविजन ORT टेलीविजन था जिसने उस पुतिन के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ा था, और वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने पुतिन के खिलाफ बोला और पुतिन की सरकार ने फटाफट एक्शन लेकर उसके बिजनेस को कमजोर किया, उन पार्टीज को कमजोर किया जो उसके बिजनेस को सपोर्ट करती थी, और इस कारण उस ORT टेलीविजन के मालिक को वहां अपना सारा कारोबार छोड़कर भागना पड़ा था। फुजिमोरी ने भी यही किया था, उसने आधी मीडिया को खरीद लिया था। Sonam, go ahead. Shubham, yeah. Sonam, go ahead. Yes, sir. Sorry. दैनिक भास्कर क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रावी पर सेडिशन लॉज का इस्तेमाल करके उन्हें गिरफ्तार करवाया गया, और इसके साथ साथ 2020 में कोरोना वायरस पर रिपोर्टिंग कर रहे कई सारे जर्नलिस्ट को गिरफ्तार करवाया गया, और फार्मर्स प्रोटेस्ट को रिपोर्ट करने से कई सारे जर्नलिस्ट को रोका भी गया, और जिन्होंने रिपोर्टिंग की उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या सचमुच हमारे देश में लोकतंत्र पर खतरा है। वीडम की 1975 से 1977 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत का स्तर बहुत नीचे था, क्योंकि उस वक्त हमारे देश में इमरजेंसी लागू की गई थी और लोकतंत्र को कुछ 18 महीने के लिए स्थगित किया गया था। वीडम ने उस वक्त भी चिंता जताई थी, और अभी भी वीडम ने उस वक्त भारत को एक चेतावनी दी थी कि अगर लोकतंत्र का स्तर देश में अच्छा नहीं हुआ तो देश के लिए काफी ही ज्यादा विपदाजनक स्थितियां पैदा हो सकती हैं। 1975 से 1977 के बाद हमारे देश की डेमोक्रेसी का स्तर फिर से अच्छा हुआ, और उसके बाद 2010 तक लोकतंत्र के ग्राफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहे, पर हमारा लोकतंत्र अपने उच्च स्तर पर मौजूद रहा और दुनिया के उच्चतम लोकतांत्रिक देशों में से एक बना रहा। इसके साथ साथ देश की उच्चतम न्यायालय ने भी लोकतंत्र के आधार को बचाते हुए सरकार के खिलाफ कई बार आवाज उठाई। जब क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रावी को सेडिशन चार्जेस के अंडर गिरफ्तार किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह चेतावनी दी कि सेडिशन लॉज का गलत इस्तेमाल सरकार बार बार या किसी पर भी नहीं कर सकती है। दिशा रावी को बेबुनियादी सेडिशन चार्जेस से मुक्त किया गया और उन्हें रिहा कर दिया गया। ऐसे ही जेएनयू और जेएमआई के कई छात्र आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता पर यूएपीए लगाया गया, और कुछ समय बाद इन चार्जेस को बेबुनियाद बताते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया। ऐसे तो कई सारे मीडिया चैनल्स और सरकार के खिलाफ बोलने से कतराते हैं, और या फिर निष्पक्षता के साथ सरकार से सवाल नहीं करते हैं, पर फिर भी कई सारे इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस और चैनल्स ऐसे हैं जो सरकार से सवाल करने से पीछे नहीं हटते हैं और ना ही रुकते हैं, और यही मीडिया चैनल्स लोकतंत्र के चौथे पाए को मजबूत बनाए रखने का काम करते हैं। इसके अलावा देश में पारित होने वाले कानूनों के खिलाफ जनता की आवाज, प्रोटेस्ट, रैलीज, अपोजिशन का कानूनों के खिलाफ आवाज उठाना और देश में चल रहे फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये उदाहरण है कि हमारे देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी उतनी ही मजबूत है जितनी ये पहले हुआ करती थी और स्थिर बनी हुई है। लोकतंत्र में उतार चढ़ाव सरकार व पार्टी बदलने से आते रहते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक देश में लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर पाना बहुत मुश्किल है और लगभग नामुमकिन है। इससे हमें पता चलता है कि भले हमारा देश लोकतंत्र की सर्वोच्चता पर तो नहीं है, पर लोकतंत्र की निर्माण प्रक्रिया में आगे जरूर बढ़ रहा है। अपने चौथे ऑब्जेक्टिव पर आते हुए, जो है लोकतंत्र का अर्थ सरकार या उसके अंगों से है या जनता व उसकी आकांक्षाओं से है, उस पर आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगी, लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा लोगों द्वारा ही बना होता है और लोगों को ही माना जाता है। एक लोकतांत्रिक देश में जनता सरकार को चुनकर
जरूरत पड़ने पर क्रिटिसाइज करके, सरकार में खुद की हिस्सेदारी लेकर धरने, रैली, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर पिटीशंस इत्यादि का इस्तेमाल करके अपना किरदार निभाती है। अपने अधिकारों के लिए लड़ना, गलत कानूनों के खिलाफ आवाज उठाना और मीडिया के समर्थन से देश के हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना और अपने हकों व अधिकारों का सही इस्तेमाल व एहसास करना जनता का लोकतंत्र में काम होता है व जिम्मेदारी होती है। सरकार व उसके अंग जनता का ही एक अहम हिस्सा होता है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया शामिल होते हैं, जो मिलकर देश को चलाने का काम करते हैं और लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं। अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए मैं महात्मा गांधी के शब्द कहूंगी, जो कुछ इस प्रकार थे: जब तक पावर के हिस्सेदार सब नहीं हैं, तब तक डेमोक्रेसी नामुमकिन है, लेकिन लोकतंत्र को भीड़तंत्र भी नहीं बनने देना है। अतः मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ और यही कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए हम सभी जिम्मेदार होते हैं और लोकतंत्र को बनाने के लिए भी हम सभी जिम्मेदार होते हैं। थैंक यू। Thank you, Ms. Sonam, for this wonderful presentation. You know, the process that you talked about, how a democracy moves to a autocratic regime and vice versa, without even the leaders realizing it, was I think it was the highlight of your presentation, and you know, it was overall a very remarkable presentation. If we exclude the network glitches. So let's talk about democracy a bit more. You know, the democracy corruption nexus is always accused of being a rosy view of reality, you know, but despite the various interpretations and thoughts on democracy, Habit Michael puts it forward in a way that while it is unrealistic to assume that any method can eliminate the corruption altogether, the question is that whether the process of democracy can reduce the severity of problem that we have. You know, in a democracy, the individuals have that freedom to associate with these institutions, the freedom to expose information, and therefore the freedom to promote greater transparency. In any other form of government, I don't think these freedoms are, like this ensured. As John Davey also says, the cure for the ills of democracy is just more and more democracy. So I'm not, I'm totally on this although democracy is far from being a perfect political system, but it is currently undoubtedly an important tool in achieving the equality, decreasing the conflicts, and increasing the civic engagements, making it the best available system of government. So with this, let's move to some of the questions that were posted by our listeners. So first is by Mr. Vishesh. He's asking, can a healthy democracy like that of India become a dictatorship by numbers? By numbers in the sense of voting numbers, electoral democracy in the sense? Mainly he's trying to ask, can a democracy be controlled by just a group of people when they gain absolute majority? ये कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बहुत ही साधारण रूप से अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव में बात कही थी कि सरकार किसी न किसी तरीके से, चाहे वो कोई पार्टी हो चाहे कोई नेता हो, अपने ही लोकतंत्र का इस्तेमाल करती है, लोकतंत्र के हिस्सों का इस्तेमाल करती है, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही कानूनी प्रक्रिया से, क्योंकि कई बार तो लीडर्स को भी नहीं पता होता है कि वो इनका इस्तेमाल अपने फायदों के लिए कर रहे हैं और जनता के हकों को छीन रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर भारत में भी ये चीज हो सकती है, अगर कुछ समय बाद, अभी तो नहीं, कुछ समय बाद धीरे धीरे एक ही पार्टी रूल करने लगे और लंबे समय तक वो रूल करे और अपने अंदर सभी गवर्नमेंट एजेंसीज को ले ले, अथॉरिटीज को ले ले, तो वो डिक्टेटरशिप में तब्दीली ला सकती है, लेकिन वो लगेगी लोकतांत्रिक रूप से। कई सारे ऐसे देश हैं जहां जो लगते लोकतांत्रिक हैं लेकिन एक्चुअल में होते नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पेरू का उदाहरण बताया था, जहां पर उन्होंने अल्बर्टो फुजीमोरी ने बहुत ही
आसान तरीके से जजेस को अपशब्द बोलकर, अपोजिशन को उल्टा सीधा बोलकर जनता के सामने उस वक्त की सिचुएशन, जो उस वक्त आर्थिक परिस्थिति थी देश की खराब जो थी, आर्थिक संकट था, उस तरह उसको पेश करके इस तरह से लाया था कि जनता को लगा कि हाँ, यही इंसान मेरे लिए सही है और यही मेरे लिए सही फैसले ले सकता है। जबकि अल्बर्टो फुजीमोरी का सही फैसले लेने का कोई इंट्यूशन नहीं था और ना ही वो वैसा कुछ करने का चाह रहा था। और एट द एंड वो डेमोक्रेसी से, जो डेमोक्रेटिक रूप से चुना गया, वो उसने डिक्टेटरशिप लाई क्योंकि उसके हक में नहीं था कुछ भी। Okay, Ms. Sonam, I think it was very nicely answered. So हमारे पास अगला प्रश्न है मुदित भारद्वाज का। वो पूछना चाहते हैं कि भारत जैसे उत्तरदायी लोकतंत्र के प्रभावी संचालन हेतु लोकतंत्र की संरचना में हमें किन मूलभूत सुधारों की आवश्यकता है? मैं मानती हूँ कि सुधारों की जरूरत ये है कि लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो अपने हकों के बारे में समझे। हालांकि हर कोई अपने हकों को लेकर लड़ने आ जाता है, अधिकारों को मांगने आ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल निभाती है। इस वक्त हमारे देश में आइडियोलॉजी ही सबसे ज्यादा अपना इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है। इस वक्त अधिकारों का कुछ नहीं है, लोग अपने कल्चर को ले आते हैं, चीजों को मिक्स कर देते हैं, अधिकारों को अन्य चीजों से जोड़ना शुरू कर देते हैं, जिस कारण लोकतंत्र में कहीं ना कहीं तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है लोगों के बीच, सरकारों के बीच, जिस कारण से परेशानियां आने लगती हैं और हम लोगों को लगता है अरे लोकतंत्र पर तो खतरा है, लोकतंत्र खतरे में है। और वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स मुख्य रूप से, मैं मानती हूँ कि ऐसी ही चीजों को देखकर ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, ओपिनियंस दिए जाते हैं कि हाँ, हमारे देश में लोकतंत्र की कमी है। कहीं ना कहीं ये हमारे देश के आइडियोलॉजी भी है जो हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करती है, सरकार की आइडियोलॉजी भी है जो लोकतंत्र को प्रभावित करती है, और लोग इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होने चाहिए कि वे इस चीज को समझें कि उनके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। हर चीज को राइट और लेफ्ट विंग में बांटने की बजाय वो अपने लिए और सामने वाले के लिए सही चीज समझना जरूरी है। तो बस सब कुछ बदलाव लोगों से है, लोकतंत्र तो लोगों में ही बदलाव आना जरूरी है। थैंक यू। Okay, Ms. Sonam. So another question is from Mr. Ajay. वो पूछना चाहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि बहुत ही ज्यादा लोकतंत्र हमारे प्रगति में एक बाधा है और हमारे देश के लिए कई बाधाएं क्रिएट करता है? हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोकतंत्र बहुत धीरे प्रोसेस करता है, क्योंकि लोकतंत्र सबके विचारों को मानता है, सबके विचारों को लेना जरूरी समझता है। पर मैं मानती हूँ कि अगर हमारे देश में कोई भी ऐसा फैसला ला दिया जाए जो माइनॉरिटी के तो हिस्से में जो मेजोरिटी के तो हिस्से में आ रहा है, उन्हें तो पसंद आ रहा है, लेकिन माइनॉरिटी के लिए कोई भी समाधान नहीं है उस परेशानी से, तो क्या किया जाएगा? देश का एक हिस्सा अगर उदास है, देश का एक हिस्सा अब उन नियमों से खुश नहीं है और सही नहीं मानता उन नियमों को, तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो देश लोकतांत्रिक है? हमारे देश में किसी भी कानून का पारित होना बराबर रूप से जरूरी है कि जो भी पारित हो वो सबके हिस्से में आए, सबको सही लगे और बिल्कुल सही प्रकार से वो सभी के हिस्सों में आए और सभी के परेशानियों का समाधान करे। थैंक यू। Okay, Ms. Sonam. So we'll take one last question जो अनीश का है। तो अनीश पूछना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता स्वयं सरकार को चुनती है, तो क्या हमारा सरकार से प्रश्न करना सही है, और अगर सही है तो किस हद तक सही है? एग्जैक्टली ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम लोग अपने क्लासेस में देखते हैं, तो क्लासेस में मॉनिटर्स चुने जाते हैं, तो कुछ बच्चे उसके पक्ष में होते हैं और बड़े अच्छे से उसको वोट करते हैं। मेजोरिटी जो हिस्सा है वो मॉनिटर को चुन लेता है। अब वो जो मेजोरिटी हिस्सा है वो ये सोचकर चुनता है मॉनिटर को कि भाई ये हमारी बात मानेगा, और अक्सर ऐसा होता भी है, मॉनिटर मानता है, ठीक है, लेकिन जो माइनॉरिटी हिस्सा है और कई बार उसकी बातें नहीं मानी जाती। पर ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी कुछ नहीं होगा कि जो मॉनिटर है वो ऐसा कोई फैसला नहीं लेगा क्लास के लिए जो मेजोरिटी के लिए भी सही नहीं है। ऐसे कई फैसले होते हैं जिस पर सबको सोचना जरूरी होता है, जिस पर सबको सोचना और समझना हर चीज को जरूरी होता है। हम सरकार को चुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बिल्कुल सही सरकार चुनी है। अगर ऐसा होता तो एक ही पार्टी सालों तक चलती आती, तो दूसरी पार्टी की जरूरत होती ही नहीं, हमारे देश में अपोजिशन होता ही नहीं, अगर हमें लगता कि एक ही पार्टी हमने चुनी है तो बिल्कुल सही हो।
तो मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सरकार को हमने चुना है तो उसे सवाल करना गलत है। सवाल करना हमारा अधिकार है। लोकतंत्र हमें ये प्रदान करता है कि हम सवाल करें अपनी ही चुनी हुई सरकार से, चाहे किसी से भी। हम सवाल करना हमारा हक है। बस, थैंक यू। ओके, थैंक यू मिस सोनम। आई थिंक आपने सारे प्रश्नों का बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब दिया। अब नाउ बैक टू यू मिस्टर अजय। Thank you, Mr. Saurabh, and thank you for Mr. Sonam, Miss Sonam, for such nice questions and such nice answers that you have given. Like the way that you have presented each and every answer, it was really meticulous, and I really appreciate for whatever the way you had applied on your question answering. You know, I am really awe in it. Really, I'm saying. So thank you, and thank you for your future being. So now I would like to call the speaker of the next Sunday, Mr. Tarun Mishra, who is a first year student from Dayal Singh College pursuing B Honors Political Science. He would be briefing about his topic for the next Sunday. Mr. Tarun. Thank you so much, Ajay. I hope I'm audible. Yes, yes, you are. थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक करेक्शन कर दूं कि जब मैंने पार्टिसिपेट किया था तब मैं फर्स्ट ईयर में था, अभी मैं सेकेंड ईयर में हूं, इसलिए इसको आप एक करेक्ट कर लीजिएगा आगे की जब मैं बोलूँगा 29 अगस्त को। तो Sure, नमस्कार, sure. मेरा नाम तरुण मिश्रा है। मैं दयाल सिंह कॉलेज मॉर्निंग के राजनीति शास्त्र द्वितीय वर्ष का छात्र हूं और GSTS के मंच पर अपनी 29 अगस्त की प्रस्तुति की भूमिका लिए यहाँ उपस्थित हूं। और सबसे पूर्व तो मैं सोनम जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने लोकतंत्र जैसे विषय को इतने स्पष्ट रूप से उठाया, और मेरा ये स्वयं निजी विचार है कि लोकतंत्र की अमरता हमेशा रहनी चाहिए, और एक सरकारी ढांचे के रूप में देखेंगे तो लोकतंत्र हमेशा अमर रहता है और लोकतंत्र से बेहतर ढांचा कोई नहीं है। तो प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हुए यह विचार अब तक हमारे हृदय और मस्तिष्क में घर कर चुका होगा कि मानव सभ्यताएं अपनी उपलब्धि के उत्कर्ष पर हैं। विज्ञान आगे चले जा रहा है और उसकी राह पर हम सब वह भी करने में सफल हैं जो आज से पूर्व असंभव था। परंतु जिस विषय को मैं आपके समक्ष लेकर आने वाला हूं, उसे कहीं न कहीं तो पुनर्जन्म की आवश्यकता है। मैं अपनी प्रस्तुति घटता हुआ साहित्यिक और पाठन प्रभाव में आपका ध्यान वर्तमान में साहित्य और पाठन की स्थिति की ओर ले जाने का इच्छुक हूँ। मेरा बल अन्य भाषाओं के साहित्य पर निसंदेह रहेगा, परंतु मैं हिंदी साहित्यिक घटनाक्रम और कालों से होते हुए अपने विचारों को उद्घाटित करूँगा। साथ ही अन्य भाषाओं और देशों को समकालीन रखते हुए उन पर भी प्रकाश डालूंगा। हम अपनी इस वार्ता को 5 विषयों से होकर आगे बढ़ाएंगे, जिसमें पहला साहित्य का इतिहास, दूसरा साहित्य का संबंध भविष्य और मार्गदर्शन से, तीसरा सकारात्मक साहित्य और नकारात्मक साहित्य में अंतर, चौथा घटता हुआ पाठन विशेष तौर पर हिंदी, और पांचवा साहित्य को सुधारने हेतु सुझाव एवं उपाय। इस आशातीत संबोधन से मेरी आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं कि जिस सम्मान का अधिकारी साहित्य है वह उसे पुनः प्राप्त हो। हम प्रौद्योगिकी के पथ पर आगे भले बढ़ें पर पढ़ना न भूलें। मीम के युग में, इंस्टाग्राम और फेसबुक के युग में हमारा यह प्रयास रहना चाहिए कि पाठन कार्य और उसके फल से हम वंचित न हों। जिस प्रकार का प्रतिनिधित्व साहित्य ने किया है उसकी चमक हमेशा बरकरार रहे और इसकी स्वर्णिम ध्वजा सदैव लहराती रहे। मैं मंगल कामना करता हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय आप सब तक सटीक ढंग से पहुंचे और अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। धन्यवाद। Thank you, Mr. Tarun. Really, we would really love to listen your topic the next Sunday. So I would also invite everybody who is present here to come to the next Sunday to listen Tarun's topic. Moreover, now I would again like to call Ms. Kashish for showering few words over GSTS and over our speaker. If it is possible for Ms. Kashish, then I would really like to have the few words of her. Thank you, Ajay. So first of all, I would like to say that Sonam, it was really a very good presentation by you. Major part that the transition that you talked about, unknowing transition of dictatorship that you talked about, was really the highlight of your whole presentation. And also, the best part of your presentation was the organized structure. One by one, all things were coming down, and the way it ended, it was really nice. And also, the cherry on the cake was the 2 case studies that you took about Peru and Chile. It was really so well explained by you. So overall, your talk was really a resourceful talk for me, and it was really a treat for me to watch, to listen to you.
So, two thumbs up to you, and it was really great. Uh, Also, I would like to share some insight from my side also on the topic of democracy, because I believe that when you share knowledge, it kind of expands, and like it helps to build more ideas in the among the people around you. So, being a political science student, I myself know that this topic of democracy is so deep that you dive into it. It's so deep that you will keep on getting topics on topics, but still covering whole topic at one go, it's not possible. Also, if we talk about the definition of democracy, it's very varied. Different political thinkers have given varied definitions of democracy. There is not a particular standardized definition of democracy. But one thing that we all know for sure, that this very concept of democracy has been emerged from the 8th and 5th century, and that we see across the nation as representative democracy, which is flourishing in most parts of the nation today. And also, if we and where the people are really the masters of this role. The thing which I really want to talk about here is the facts. For example, if we talk about the top 10 democracies of the world, you will wonder to know that the top 10 democracies of the world have those three features which are very uh, astonishing to know, that these three top 10 democracies of the world, the first point that I want to take about these democracies is that these top 10 democracies have a very small population. Okay, they are very small populated countries. Second, these countries these countries are very rich. Okay, they have a very good economy. And third, they are very homogeneous countries. They have no ethnic division in them. So be it the country of Denmark or the Netherlands or the Norway, these are the countries which are among the top 10 democracies of the world, which are like very great, and they come among the top 10. In contrast to this, if we see the democracy of India, like in 1947, it was really a sharp difference we can see, because at that time, our democracy had the population that was, there was an ample amount of population at that time also. Secondly, if we talk about the economy, it was not better, also not good. It was like at a very devastating stage at that time when the British went from India. And if we talk about the third thing, that is the homogeneous nature, it was not at all homogeneous. It was really heterogeneous in character. It was really divided. And coming to a period of 6 decades that we have walked to this road of democracy, we can be very proud of this fact that we haven't seen any blockade at that journey of democracy. In spite of the fact, excluding the period of 1975 to 77 of emergency, which was stemmed by the then Prime Minister Mrs. Gandhi of her paranoia, but still we haven't seen any backthrough in the democracy. That is a proud moment for all Indian people. Also, I would like to say that if we talk not in terms of top 10 democracy in the world, but if we talk in terms of top 10 democratic country along with the population, who have the maximum population also, then also India and USA are the only countries which have a kind of a democracy which are considered as a democracy, as established democracy in the world. However, there are China and Russia also in that list, but we very well know that it is not a democracy. It is kind of a disguised democracy that we see there. However, if the six countries that are left in these top 10, they are in the progress of democracy. But India and USA are the established democracy as told by the as in the world. So my what I meant to say here is that the real proof of that this really concept of democracy is that democracy can only be observed in the nations. They can be only observed in those nations which are partially divided in every context. They are very much divided, but still we can see some features. We can still see that they are united in the sense that the democracy is working properly. It is not. It is not getting blocked. It is not getting stopped. So, in a, if we have to see the real democracy, we have to see it in in the divided country. Okay, and that is the feature of India. India is a land of divided masses with the united glasses, I say.
But in recent time, we have seen that certain reports have implicated that India has kind of seen the sign of our democracy getting eroded uh, gradually. But what I want to say here is that these erosions are not because of the elections procedures or something, or vote procedures, but that these are due to the political developments that are taking place by the ruling government. Okay, and also in respect to like the Hindutva bandit politics that is being played, or the executives that are being more that are given more power, or the subjugation of the media houses for dissenting the political ruling government. These factors are considered in this report, which actually kind of deteriorating the democracy of India. And also the opposition also are they are also like not they're over concentrated on their own shortcomings and not concentrating to counter the ruling government. If they will not do so, how will the rule so because of the denial to counter the ruling government, they kind of giving it more superiority. And also they are not giving the masses more a better alternative. So how do the masses choose? So one, if there is a case, if the masses get a proper alternative in apart from the ruling government faces, they will surely make a change in the ruling make the change in the state. Because as we can see in 1977, when the Junta government came to power, the people of India only, through the most charismatic leader Mrs. Gandhi, uh, uh, who was considered as a, considered and admired by most of the masses of the India. But because of her kind of the problem that she created in the emergency period, really propelled people to throw her out of the state. And she lost very badly in the constituencies where she contested, and also her son too. So these kinds of events in the history has shown that Indians are very well know their democratic priorities and their democratic aspirations. And at the end of the day, democracy is all about the people. So at the end, I would like to say some lines that are being said by Manishankar Iyer. He says that India's democracy is flawed, but I know no democracy that's not flawed either. But I also know no alternative system that's not even more flawed. So these are his lines that he says that we people have we people are living in a democracy, but we don't have any other alternative than best alternative than democracy too. So here's the end of what I wanted to share with you guys, what I knew about democracy. Uh, I hope I have given some insight, and thank you, Sonam, for giving such a brilliant presentation on noises of democracy. And I really liked your Hindi fluency, which was so good. So thank you so much, and also the GSTS team for inviting me as a chief guest for this 28 GSTS talk. So thank you so much, all of you, for this opportunity. It's really a privilege for me to come here and speak. So thank you so much. Over to Ajay. Thank you. Thank you. And Graduate Scholar Talk Series would like to thank you for attending, this event. And we hope you had fun. And we look forward to seeing you at the next event too. We truly appreciate your support. Thank you for being here, Ms. Kashish. Thank you. Now, I think we have also covered everything on our list, and this is a time for closing the event. So, therefore, I call Ms. Archana to give the vote of thanks. Thank you, Mr. Ajay. B.R. Ambedkar, in Prospects of Democracy in India, 1956, said, "The roots of democracy lie not in the form of government, parliamentary or otherwise. A democracy is more than a form of government. It is primarily a mode of associated living. The roots of democracy are to be searched in the social relationship, in terms of associated life between the people who form a society. Good evening, everyone. As you may know,
Department of History achieved new heights in the session 2016-17 under the convenership of Dr. D.N. Singh, Dr. Pramod Kumar, Dr. Manish Kamwar, Dr. Seema Meena, and Mr. Ajay Kumar. This was the first time when the department formed the History Society Saksha. Saksha has since then conducted various activities ranging from educational trips to seminars and webinars. At present, Saksha conducts Graduate Scholars Talk Series, a weekly talk series for young minds. Saksha is also publishing a magazine, Journal of Continuity and Change by Graduates, which takes you on a journey to the past to look at the present and visualize the future. The current office bearers of the year 2021-22 are Mr. Shubham Tiwari as President, Ms. Preeti as Secretary, Ms. Mandira Paul as Joint Secretary, and me, Ms. Archana Bharti as Creative Head. I, Archana Bharti, student of BA program English plus History and the Creative Head of Saksha, deem it to be a great honor and privilege to deliver the vote of thanks. This is also the first time that we have a special guest of honor. So first of all, I would like to thank Ms. Kashyap Singh from BA Honours third year. Thank you so much, ma'am, for the thoughtful and informative insight. It was a pleasure to have you here. I would also like to thank Dr. Dharma Rawat, Mr. Ajay Kumar, and all the teachers that joined us today. I would like to express my gratitude to convener Dr. D.N. Singh for gracing us with his presence in this program. I would like to give my thanks to the GSTS team and Saksha team who worked hard to conduct the program successfully even through the network glitches. An earnest thanks to our speaker, Ms. Sonam, for giving such an exceptional talk on the noise of democracy, Loktantra ki Hunkar. Thank you so much. I wholeheartedly thank all the students for joining us today. Thank you so much for being with us. We will meet next Sunday with another